Hello guys and welcome back to Learning with Isha. We are talking about basic biology. हमने बात करनी स्टार्ट की थी अबाउट रेस्पिरेशन. बात कर चुके हैं रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है. आज हम आगे बढ़ते हैं. आज के वीडियो का प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि क्या प्लांट्स सांस लेते हैं? डू प्लांट्स ब्रीथ? डू प्लांट्स रेस्पायर? अभी तक हम जान चुके हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग वर्ड्स हैं, बट नॉर्मली इस वीडियो में हम उनको इंटरचेंजेबली मतलब एक जैसा ही यूज करने वाले हैं. नाउ डेफिनेटली प्लांट्स लिविंग होते हैं एंड ऑल लिविंग बीइंग्स नीड टू एक्सचेंज गैसेस. ऑक्सीजन आएगा तभी तो फूड ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली yes. Plants do breathe, they do respire. Now, what is the need for this respiration? Well, the need for this respiration is the same as animals. It is the release of energy. So, the need is release of energy. Now, to release energy, we know that there are two gases basically. One gas is O2, that is your oxygen. This oxygen will go in the cell, help in somehow in the breakdown of food and cause the release of energy. Also एक गैस होती है जिसे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, सेल के लिए वेस्ट होती है. वो कौन सी होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड. दो प्राइमरी गैसेस का एक्सचेंज होता है between the plant and the environment. That is why these two gases are known as the respiratory gases. So they are known as the respiratory gases. Okay. Now हम ये तो समझ गए that plants breathe. But is this process similar to animals या ये animals से कुछ different होता है? The answer to this question is breathing or respiration in animals is completely different from that of plants. इसका basic reason ये हो सकता है guys that animals are basically mobile. Mobile, M-O-B-I-L-E. Mobile means they are moving creatures, and organisms that move need a lot more energy than organisms जो कि एक जगह पे क्या है? Fixed है. प्लांट्स फिक्स्ड है इसलिए उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है? कम है. एनर्जी कम रिक्वायर्ड है तो ऑक्सीजन क्या रिक्वायर्ड है? कम है. सो डेफिनेटली इन दोनों का ब्रीदिंग अलग होने वाला है. कम लेट्स हैव अ लुक पॉइंट बाय पॉइंट एट द डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ. नाउ द फर्स्ट डिफरेंस इज इन द पार्ट्स इन्वॉल्व्ड. नाउ इन द प्लांट every part of the plant is responsible for its own exchange of gases. Leaves में भी gases का exchange होता है, stem में भी gases का exchange होता है. All parts of plant breathe themselves. So in plants, you see breathing is via all parts. Let it be leaves, let it be stems or any other part of the plant. But in animals, usually हमारे पास क्या होते हैं? Specialized systems होते हैं. Specialized systems का क्या मतलब होता है? Now these special systems mean that if I talk about humans, we have an organ for breathing. Are you aware what it is? I hope you guessed it right. The answer is lungs. Now, if you talk about some other animal, let's say you're talking about a fish. Fish में जानते हो कि क्या होते हैं? Gills होते हैं, right? So fishes have gills. Now, if I talk about some animals like earthworm use skin. But the point I want to emphasize here is that कोई भी animal हो, उसमें एक specialized system होता है. वो हर part से breathe नहीं कर सकता है. Now, let's come to the second point. What are the distances involved? अब आप देखो लीफ अपना सांस खुद ले रहा है, स्टेम अपना सांस खुद ले रहा है, तो गैसेस को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है. मान लो एक प्लांट है, इसका लीफ है,
कहाँ मैक्सिमम लीफ के सरफेस से लोअर सरफेस ऑफ लीफ तक जाएंगे। यहाँ तो ये अपना सांस खुद ले रहे हैं। सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज ओवर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, and in the case of animals this exchange is over very large distances. Now if you talk about humans, we breathe through our nose. Some of us breathe through our mouth also, but it is not the good way of going about it. So standard way may we breathe through our nose. Okay, now from our nose this air travels and reaches where? Our lungs, and from lungs ये blood में dissolve होके पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है। सो आप सांस तो नोज से ही लोगे, ट्रैवल कहाँ करेगा? वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑल ओवर योर बॉडी। दैट इज व्हाई वी से दैट ट्रांसपोर्ट इज ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द रेट? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लांट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, तो इनका रेट ऑफ ब्रीदिंग भी क्या होता है? स्लोअर। व्हाई? बिकॉज दे रिक्वायर लेस एनर्जी. Animals have a higher breathing rate or a faster breathing rate. Now let's come to the last point, a word known as diffusion. Now before I talk about the differences in terms of diffusion, I'll give you a quick overview कि diffusion है क्या. Diffusion basically एक process है जहाँ कोई भी solute higher concentration से lower concentration की तरफ जाता है. So now let's say I have this membrane or whatever barrier. इस साइड solute की concentration ज़्यादा है. Solute is whatever substance जिसकी concentration हम observe कर रहे हैं. On the other side of the membrane, solute की concentration कम है. Solutes कहाँ move करेंगे? From region of higher concentration to region of lower concentration. इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन. क्या डिफ्यूजन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन्स. नहीं, डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लगती है, इसीलिए डिफ्यूजन को एक पैसिव प्रोसेस कहा जाता है. एक्टिव तब हो जाता है जब एनर्जी लगती. रिमेंबर, डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस. नाउ लेट्स कम बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. प्लांट्स में डिफ्यूजन गाइस बहुत सक्सेसफुल है. क्यों? बहुत थोड़े से एरिया में आपको गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या होगा? हर सेल अपना सांस खुद ले लेगा, ऐसे ही एयर ट्रैवल कर लेगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएंगे. सो इन प्लांट्स डिफ्यूजन इज वेरी सक्सेसफुल. ओके, बट इन एनिमल्स डिफ्यूजन इज नॉट इनफ. व्हाई? बिकॉज एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज नॉट इन कंटैक्ट विद द एनवायरमेंट. मेरे से स्किन के सरफेस पे सेल्स हैं, वो एयर से डिफ्यूज कर सकते हैं. व्हाट अबाउट द ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड माय बॉडी? इन सबको एयर डिफ्यूजन के थ्रू मिलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. सो डिफ्यूजन इज वेरी सक्सेसफुल इन प्लांट्स एंड वेरी वेरी अनसक्सेसफुल इन एनिमल्स. Now let's move ahead and talk about how respiration actually takes place in plants. Let's begin talking first about how respiration happens in roots. Most of you will think कि respiration roots में होती ही नहीं होगी. As I told you, every part of the plant is responsible for its own supply of air. Okay? तो roots में भी respiration बहुत ज़रूरी है. कैसे होती है? आओ देखते हैं. In roots, now let's see, this is the structure of a root. Here what we see is the surface of the soil. ठीक है, उसके नीचे आपका root grow कर रहा है, root आ रहा है और वो divide हो रहा है further आपके small branches में. ये red से जिसको हमने represent किया है, they are actually your soil particles. So between these soil particles, you have your root. Now this root के end पे जो ये hair like structure present है, इन hair like structure को कहा जाता है root hair. What exactly is this root hair? Root hair एक structure है जो root के epidermal cells से बना हुआ है. Important question, what is root hair made up of? It is made up of root epidermal cells.
सो रूट के जो सेल्स हैं एपिडर्मल सरफेस के, उनसे डिराइव्ड होते हैं ये फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर। रूट हेयर का काम क्या है? अब आप देखो कि रूट और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में काफी सारी स्पेस प्रेजेंट है। इस स्पेस को हम कहते हैं एयर स्पेस। एयर स्पेस से ही आप समझ गए होंगे किस चीज की जगह है ये, एयर की। ओके, नाउ यू हैव एयर एंड यू हैव रूट हेयर। ये रूट हेयर बहुत पतले होते हैं। जब डिफ्यूजन एक पतली सरफेस के थ्रू होता है तो जल्दी होगा, राइट, ताकि क्यों कोई रोकने वाला नहीं है। सो रूट हेयर क्या करते हैं, ये इन एयर स्पेसेस से ये एयर का गैशियस एक्सचेंज करते हैं। इस तरीके से व्हाट हैपन्स दैट ऑक्सीजन गोज इनसाइड एंड CO2 comes outside, and then the CO2 is removed and more oxygen comes in. So this is the function of root hair. Now since we are talking about this, let me tell you a little bit about water logging. I am sure you must have heard about the problem of water logging. वाटर लॉगिंग के सिनेरियो में क्या होगा कि जो ये एयर स्पेसेस हैं, आपने पौधे को ज़्यादा पानी दे दिया, ज़्यादा बारिश हो गई, फ्लड कंडीशंस आ गए, इस सब एयर स्पेस में क्या घुस जाएगा, पानी घुस जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण क्या होगा, एयर यहाँ से हट जाएगी। एयर हटने के कारण आपके ये रूट हेयर को क्या मिलनी बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हम पहले ही अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, ऐसे कंडीशंस को बोला जाता है एनएरोबिक कंडीशंस। एन मीन्स नो, एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन। एनएरोबिक कंडीशंस, वी नो कि जब भी एनएरोबिक कंडीशंस बनती हैं, क्या बना लेगा प्लांट, फटाफट ये बनाता है इथेनॉल। अब इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जमा होगा, इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है। इन सेल्स के आसपास ज़्यादा इथेनॉल होने के कारण ये सेल्स पॉइजन हो जाते हैं। ये इसे कहते हैं अल्कोहल पॉइजनिंग, ठीक है। सो ज़्यादा इथेनॉल से दीज रूट हेयर बिगिन टू डाई। इन द एब्सेंस ऑफ रूट हेयर, रूट को ऑक्सीजन नहीं मिलती एंड द रूट्स इवेंचुअली डाई. That is why waterlogging causes death of the plant. Now let's move ahead and talk about respiration in stems. As we talk about respiration in stems, it is first important to classify कि stems basically किस टाइप के होते हैं. आप देखो stems basically दो टाइप के होते हैं. या तो stem आपका हो सकता है soft and green, या आपका स्टेम हो सकता है हार्ड एंड वुडी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम? जिनके कोमल स्टेम्स होते हैं ग्रीन कलर के ना, जैसे मिंट वगैरह में आप देखोगे, दे आर कॉल्ड सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स. कहाँ मिलते हैं ये? हर्बेशियस प्लांट्स में. हर्बेशियस मीन्स हर्ब लाइक. सो इन हर्बेशियस प्लांट्स यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. वुडी स्टेम मतलब जो आपको बिग ट्रीज के बार्क में दिखते हैं ना, वुड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, पूरा बार्क दिखता है ब्राउन कलर का, दैट इज योर वुडी स्टेम. दिस इज ऑफन थिकर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दीज सॉफ्ट स्टेम्स, इनमें जो स्ट्रक्चर होता है रेस्पिरेशन के लिए, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टोमेटा. आपने डेफिनेटली स्टोमेटा के बारे में सुना होगा. स्टोमेटा क्या होते हैं? ये ओपनिंग्स होती हैं. ये मान लो आपके गार्ड सेल्स हैं, इनके बीच में क्या है? ये पोर. इस पोर को कहा जाता है स्टोमेटा. इस स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है? ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है. सो नाउ दिस स्टोमेटा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन इन हर्बेशियस प्लांट्स. वुडी प्लांट्स में स्टोमेटा क्यों नहीं एक्ट करता? क्योंकि ये स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में मिलता है ऑफ द लीव्स. जब आप वुडी स्टेम्स की बात करते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिविंग सेल्स प्रेजेंट नहीं होते. लिविंग सेल्स ना होने के कारण स्टोमेटा भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता. तो यहाँ पे किस तरह की ओपनिंग होती है? इस ओपनिंग को कहा जाता है लेंटिसेल्स. ये लेंटिसेल्स क्या है?
जो बार्क है, बार्क में कई सेल्स बहुत लूजली अरेंज हो जाते हैं. सेल्स आर लूजली अरेंज्ड एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड लेंटिसेल्स. ये लेंटिसेल्स क्या करता है, एयर की एक्सचेंज को अलाउ करता है जो भी लिविंग सेल्स हैं उनके साथ. देखो, अगर आपका वुडी स्टेम है ना, इसमें सारे सेल्स लिविंग नहीं होंगे. मान लो ये आउटर सेल्स आपके लिविंग है. क्या है, यहाँ पे बार्क फटेगी, एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसे कहेंगे लेंटिसेल्स. ये क्या करेगा, बस लिविंग पोर्शन तक गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करेगा. इनर पोर्शन इज डेड. Now in this dead portion, no exchange of gases is required. So an important question that can come from respiration in stems is, what are lenticels, where are they present, and what kind of respiration they help in. Now let's talk about the last part of this video, that is respiration in leaves. When we talk about respiration in leaves, it is important to note that there are two kinds of leaves. One are broad leaves and one are narrow leaves. Broad leaves मतलब जो आपके broad बड़े चौड़े पत्ते होते हैं, इन्हें कहते हैं broad leaves. And narrow leaves हो गए, जैसे राइस वगैरह में होते हैं, पतली सी जो ऐसे blade टाइप के पत्ते होते हैं, घास में होते हैं, grass में. These are all narrow leaves. Here an additional point that I will tell you, that broad leaves are present in dicot plants and narrow leaves are present in monocot plants. You would imagine कि ये यहाँ पे बताने का point क्या है. You would realize कि यहाँ पे आपके dicot plants में stomata की location क्या है, वो different है as compared to monocots. In dicots, stomata is only present on the lower surface of the leaf, as in the lower epidermis. But in the monocots, the stomata are distributed evenly all over the leaf. मतलब आपके पूरे लीफ के सरफेस पे ये प्रेजेंट होंगे. So this is evenly distributed stomata, which also means that in leaves, the only structure for gaseous exchange is stomata, whether it be present on the lower surface or whether it be present all over the leaf. Now let's talk about ये exchange of gases कैसे हो रही है प्लांट में दिन के वक्त और रात के वक्त. अब आप देखो, डे टाइम में क्या होता है. डे टाइम में सनलाइट के प्रेजेंस में पौधे अपना खाना बनाते हैं थ्रू अ प्रोसेस विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसका इक्वेशन अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा दिखता है. कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होता है वाटर के साथ. इवेंचुअली ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और उसके साथ क्या बना देता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है. So you will realize that during the daytime, plants do photosynthesis, so they give out oxygen and they take in carbon dioxide. Why? Because they require it for what? Photosynthesis, right? इसके अलावा डे टाइम में प्लांट्स ब्रीथ भी तो कर रहे हैं. तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या है, रेस्पिरेशन के दौरान दे आर टेकिंग in oxygen and giving out CO2. तो आप देखोगे ये दोनों प्रोसेस बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं. तो दिन के वक्त आखिर प्लांट ले क्या रहा है. The amount of O2 taken in during the daytime is much less than the amount of O2 given out. तो फोटोसिंथेसिस के कारण प्लांट्स डे टाइम में ऑक्सीजन क्या करते हैं, गिव आउट करते हैं. और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रेस्पिरेशन में रिलीज होगा, वो कहाँ यूज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा. इनफैक्ट ये CO2 प्लांट्स को कम पड़ता है खाना बनाने के लिए. इनको एटमॉस्फेयर से और ज्यादा CO2 लेने की भी जरूरत होती है. You can very well imagine that during the night time this process is going to get reversed. Let's talk about what happens during the night time. During the night time, photosynthesis does not occur.
The only process that occurs is respiration. So respiration में पौधे रात के वक्त क्या करेंगे, जो हम करते हैं, O2 को क्या करेंगे, टेक इन, और CO2 को क्या करेंगे, गिव आउट. इसीलिए आपने सुना होगा कि रात को पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए. Why? Because at night they release CO2. During only the daytime, plants release oxygen. But this oxygen released in the daytime is much, much more than the oxygen they will consume at night. Overall, इसलिए हम कहते हैं that plants release oxygen, which is a waste product of what? Photosynthesis. When we talk about photosynthesis in the upcoming videos, this will become more clear to you. Well, that's all for today, guys. We have come to the conclusion of this video where we saw about respiration in plants. We spoke about stomata, we spoke about lenticels, we also spoke about the differences in location of stomata in dicots and monocots. We saw the process of waterlogging, and in the last part of the video we have also seen कि day और night में plants में respiration में क्या फर्क आता है. In the next video, we will move ahead and talk about the process of respiration in animals. What happens in a frog, what happens in an earthworm, and eventually what happens in us humans. I hope you enjoyed this video. If you have any suggestions, don't forget to comment below. Share with your friends. Do subscribe to my channel and see you in the next video. Thank you.